اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج کا کلاس شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے بھائی؟ پہلا سوال ہے، ایک خلاصہ لکھنے کے لیے دو مہارتیں ضروری ہیں، وہ ہیں یعنی کسی بھی خلاصہ کو لکھنے کے لیے دو مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دو مہارتیں کون کون سی ہیں اسی کے بارے میں دیکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ تو آپشن الف میں ہے متن اپنے الفاظ میں دوبارہ لکھنا، مترادف الفاظ کا استعمال کرنا، متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی شناخت کرنا، اور مرکزی خیال کو سمجھنا۔ آپشن جی میں حرف ربط استعمال کرنا، صحیح عبارت لکھنا۔ آپشن دال میں ہے الفاظ کے بجائے اصطلاحات کا استعمال کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن با ہو جائے گا، کیونکہ متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی شناخت کرنا، جو متن ہے اس کے بڑے اور چھوٹے جو نقطے ہیں اس کی پہچان پہلے کرنا ہے، پھر اس کے مرکزی خیال کو سمجھنا ہے۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا کہ متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی پہلے پہچان کرنا ہے، پھر اس کے مرکزی خیال کو سمجھنا ہے۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال۔ دوسرا سوال ہے، کسی کی نقل نہ کر کے اپنے اسلوب میں لکھنا کہلاتا ہے، یعنی کسی کی کاپی نہ کر کے اپنے طریقے سے لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے افسانوی، با میں ہے مکالمہ، اور جیم میں ہے تخلیقی، اور دال میں ہے خط۔ تو اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا کہ آپشن جیم۔ تخلیق کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ خود سے لکھنا، خود سے کرنے کے مطلب، ٹھیک ہے۔ تو تخلیقی کہلائے گا، ٹھیک ہے، تخلیقی مہارت میں آ جائے گا۔ تو آپشن جی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، پڑھتے وقت حاصل شدہ مہارت ہے۔ آپشن الف میں ہے حاصل شدہ مہارت مطلب پڑھتے وقت جو بھی چیز حاصل ہوا وہ مہارت ہے۔ وہ کون سی مہارت ہے وہی دیکھنے ہیں۔ تو آپشن الف میں ہے نوٹ لینا، با میں ہے تجزیہ، جیم میں ہے معمہ، اور دال میں ہے نوٹ بنانا۔ تو بھائی نوٹ لینا بھی نہیں ہو سکتا، معمہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نوٹ بنانا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ تجزیہ، یعنی حاصل شدہ مہارت کیا ہے پڑھتے وقت؟ تجزیہ یعنی جائزہ، ٹھیک ہے۔ تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، سرسری نظر ڈالنا کیا ہے، یعنی سرسری مطالعہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص چیز یا چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متن پر تیزی سے نظر ڈالنا، ٹھیک ہے۔ آپشن با میں ہے متن کا مطالعہ کر کے اس میں صحیح معلومات لکھنا۔ جیم میں ہے پڑھتے وقت نظریات یا معلومات کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھنا، اور آپشن دال میں ہے عام مواد، نظریات یا خلاصہ یا پھر اصل مطلب جاننے کے لیے جلدی متن دیکھنا۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب آپشن الف ہی ہو جائے گا کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے کسی خاص چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ متن پر تیزی سے نظر دوڑایا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص چیز یا چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متن پر تیزی سے نظر دوڑانا۔ تو آپشن الف رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے بھائی؟ اگلا سوال ہے، لکھنے کے دوران طلباء کو ذخیرہ الفاظ کی کمی کے سبب اپنے خیالات کے اظہار میں دشواری ہوتی ہے، اس کا ایک ممکنہ حل ہے۔ کیا کہنے کا مطلب ہے بھائی؟ جب بچے لکھتے ہیں تو لکھنے کے دوران کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو ان کے پاس ذخیرہ الفاظ کی کمی ہوتی ہے، مطلب الفاظ کی معلومات ان کے پاس بہت کم ہوتی ہے، جس کے سبب سے انہیں کیا ہوتا ہے؟ اپنے خیالات کو اظہار کرنے میں، مطلب دوسرے کے پاس اپنی بات کو پہنچانے میں کیا ہوتی ہے؟ دشواری ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے دوران طلباء کو ذخیرہ الفاظ کی کمی کے سبب اپنے خیالات، اپنی اظہار، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں دشواری ہوتی ہے، اس دشواری سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اسی کو دیکھتے ہیں۔ آپشن الف میں ہے
لکھنے کی مشق کے لیے خصوصی کلاسیں کی جائیں جن میں وقفے سے لفظوں کو املا کرایا جائے اور مشق کرائی جائے. یعنی لکھنے کے لیے مشق کی خصوصی کلاس لیا جائے. خصوصی کلاس تو لینا نہیں ہے بھائی، جن میں وقفے سے لفظوں کو املا کرایا جائے، مطلب ڈکٹیشن لکھوایا جائے اور پھر مشق کرایا جائے. یہ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے. اس کے بعد ہے طالب علم کو زیادہ سے زیادہ کہانی کی کتابیں پڑھنے پر آمادہ کیا جائے اور استاد مطالعے کے دوران آنے والے نئے لفظوں کے بارے میں غیر رسمی طور پر پوچھ تاچھ کرے. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ طالب علم کو زیادہ سے زیادہ کہانی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا جائے اور استاد مطالعے کے دوران جب بچے پڑھ رہے ہوں تو جو نئے لفظ آئیں اس کے بارے میں غیر رسمی طور پر پوچھ تاچھ کریں. یعنی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے نہ بلکہ ایسے ہی پوچھ تاچھ جس طرح بات چیت کیا جاتا ہے اسی بھی حالت میں پوچھ لے. اس کے بعد کیا ہے، طلبہ کی صلاحیت کے لحاظ سے موضوع تبدیل کرا دیا جائے. بھائی موضوع کیسے تبدیل کرا دیا جائے گا؟ اس کے بعد ہے چند الفاظ اور ان کے معنی دے کر انہیں سیکھنے اور استعمال کرنے کو کہا جائے. یہ بھی صحیح نہیں ہوگا بھائی. تو کیا ہو جائے گا؟ آپشن با ہی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ آپشن با ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا کہ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کے لیے دیا جائے گا اور مطالعے کے دوران کیا کریں گے استاد؟ نئے الفاظ کے بارے میں اسی طرح سے پوچھ تاچھ کر لیں گے. تو بچے اس طرح بچے کو پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور بچے اکتاہٹ کا بھی شکار نہیں ہوں گے. تو صحیح جواب یہی ہو جائے گا آپشن با. ٹھیک ہے، با رائٹ آنسر. چلیں اب دیکھیں کیا ہے بھائی، پڑھنے سے قبل کی سرگرمیوں کا کیا مقصد ہے؟ پڑھنے سے قبل مطلب پڑھنے سے پہلے کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپشن الف میں ہے طلبہ کی معلومات میں اضافہ کرنا، با میں ہے سبق میں دلچسپی پیدا کرنا، جیم میں ہے پرلطف آموزش کے تجربات فراہم کرنا اور دال میں ہے نئے الفاظ سکھانا. تو بھائی اس کا صحیح جواب یہی ہو جائے گا آپشن با کہ سبق میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ بچوں کو پڑھانے سے پہلے کچھ سرگرمیاں کرائی جاتی ہے، کچھ ایسی بات چیت کرائی جاتی ہے یا کوئی ایسی سرگرمیاں کرا دیا جاتا ہے جس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہو جاتا ہے اور بچے کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. تو آپشن با میں سبق میں دلچسپی پیدا کرنا، آپشن با ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں لکھنے کے عمل میں آزادانہ طور پر لکھنا، غور و خوض کرنا، دینی خاکہ بنانا کس سطح پر سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا مطلب یہی ہے کہ لکھنے کے عمل میں مطلب آزادانہ طور پر لکھنا اس طرح لکھنا جس میں کوئی قید اور کوئی بند نہ ہو. ٹھیک ہے، غور و خوض کرنا، دینی خاکہ بنانا کس سطح پر سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو آپشن الف میں ہے لکھنے سے قبل یعنی پہلے، با میں ہے خاکہ بنانا، جیم میں ہے اعادہ اور دال میں ہے پروف ریڈنگ. کیا ہے؟ دال میں پروف ریڈنگ. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف، لکھنے سے پہلے. ٹھیک ہے، کس سطح پر سب سے زیادہ ضروری ہے؟ یہ لکھنے سے پہلے کرنا ہے کہ آزادانہ طور پر لکھنا، غور و خوض کرنا یا کوئی خاکہ بنانا کس سطح پر سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تو لکھنے سے پہلے. آپشن الف رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. وسیع مطالعہ کا مطلب ہے، وسیع مطالعہ کا مطلب ہے آپشن کیا مطلب ہے یہی پوچھا جا رہا ہے. تو دیکھیں آپشن الف میں ہے غیر معروف لفظوں کے معنوں کا اندازہ کرنا. غیر معروف لفظ ہے، جو نامانوس لفظ ہے، ان کے معنوں کا کیا کرنا ہے؟ اندازہ کرنا ہے. آپشن با میں ہے موضوع کو سمجھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا. آپشن جیم میں ہے مرکزی خیال کو سمجھنا اور دال میں ہے متن کے مواد کے بارے میں پیش گوئی کرنا. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن با ہو جائے گا. وسیع مطالعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ موضوع کو، ٹاپک کو سمجھا جاتا ہے، پھر لطف اندوز ہو جاتا ہے، اس سے آدمی کو سرور ملتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، پڑھنے سے لطف ملتا ہے. تو آپشن با رائٹ آنسر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟
चले, नए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दूसरों तक पहुंचा भी दीजिए ताकि वो भी शरीक हो जाएं। चलें, अच्छे से तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे। चलें देखें, अब देखें क्या है भाई, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है। मतलब एक रेस्टोरेंट में एक इश्तहार लगा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ प्रिंट करके लगाया हुआ है और उसमें ये लाइन लिखी हुई है जो नीचे दिया हुआ है। क्या है भाई, लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ता का। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ताज़ा बनी हुई चाय का। और 3 में लिखा हुआ है बहुत अच्छी जायका की है। अब इसमें जो गलत है लाइन है उसी को देखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन अलिफ में क्या है, पहली और दूसरी लाइन गलत है, या सिर्फ पहली लाइन गलत है, या पहली और तीसरी लाइन गलत है, या सिर्फ तीसरी लाइन गलत है। बताएं आप सब कौन सी लाइन गलत है। क्या, हाँ, तीसरी लाइन गलत है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ तीसरी लाइन गलत है। ठीक है, कौन सी लाइन गलत है, सिर्फ तीसरी लाइन गलत है। बहुत अच्छी जायका की है, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ये तीसरी लाइन गलत है और दोनों लाइन जो है सही है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलें अब देखिए, किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वह हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है, पाया जाता है। यानी किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान, किसी मज़मून को समझने के दौरान वह हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है, और वह क्या कहा जाता है उसमें, वो कहाँ किस चीज़ में पाया जाता है। यानी किसी मजमून को समझने के दौरान वह हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा पेश किया जाता है, ये समझे, जहाँ पे खुलासा पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है तारुफ में, ऑप्शन बा में है इख्तितामिये में, और जिम में है पैराग्राफ 2 में, और दाल में है वस्त में यानी बीच में। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा इख्तितामिये में। इख्तितामिये में क्या होता है, सारा मज़मून का क्या हो, खुलासा पेश कर दिया जाता है, जिससे सब कुछ मालूम चल जाता है, उसमें तकरार भी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा इख्तितामिया में। ठीक है, सबसे नीचे। अब देखें क्या भाई, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानुस लफ्ज़ों का सामना होता है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए, उनको बताया जाना चाहिए कि तहरीर को समझने के लिए क्या करें भाई। अब देखें, ऑप्शन अलिफ में ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें। क्या भाई, ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें। बा में है लुग़त देखे यानी डिक्शनरी देखे। जी में है माना का अंदाज़ा करने के लिए सियाक़ो सबाक से मदद हासिल करे। और दाल में उस्ताद या पड़ोसी से रब्ता करे। तो भाई जब उनको कोई मानूस लफ्ज़ का सामना होगा, जब उन्हें किसी लफ्ज़ के बारे में मालूम नहीं होगा, तो उस्ताद या पड़ोसी से रब्ता करे, ये भी सही नहीं होगा। लुग़त देखना हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होगा। अब जब मानूस लफ्ज़, जब उनको जब लफ्ज़ मालूम नहीं है तो अब क्या उसको छोड़ देंगे, आसान तहरीर का इंतखाब करेंगे? नहीं, बल्कि क्या होगा, माना का अंदाज़ा करने के लिए सियाक़ो सबाक से मदद हासिल करे, यानी संदर्भ में, क्या में, संदर्भ में मालूमात हासिल करे। सियाक़ो सबाक जहाँ पे आप आ जाए, ये पॉजिटिव लफ्ज़ है, मुस्बत लफ्ज़ है। ठीक है, क्या है, मुस्बत लफ्ज़ है। सियाक़ो सबाक जहाँ भी आ जाए तो आप आँख बंद करके राइट आंसर लगा सकते हैं, इसलिए कि सियाक़ो सबाक संदर्भ ये सही जवाब होता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। क्या है भाई, एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में, जो तहरीरी सरगर्मी है वो इस तरह है। किस तरह है भाई, उसी को देखते हैं। ठीक है, क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना।
बा में है मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, खाका बनाना। जीम में है तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। और दाल में है खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बना। तो इसका सही जवाब भाई, इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन दाल हो जाएगा। किसी भी तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह लगता है कि पहले क्या किया जाता है, खाका बनाया जाता है कि क्या क्या हमको लेना है, फिर उसके बाद उसके खाका के ताल्लुक से मवाद इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको तरतीब दिया जाता है, फिर दोबारा खाका को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें क्या है भाई, कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़ुज़ की मुश्किलों के सबब उस ज़बान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है, इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। यानी कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को क्या होता है, तलफ़ुज़ की मुश्किल के सबब उसकी ज़बान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। यानी कोई गैर मुल्की ज़बान है, ठीक है, अब सीखने वाले तलबा को तलफ़ुज़ की जो मुश्किलात हैं, उन सब मुश्किलात के सबब उस ज़बान की किसी तहरीर को, कोई भी तहरीर है, कोई भी मज़मून है, उसको बोलने में बच्चों को क्या हो रही है, दुश्वारी हो रही है। तो उस दुश्वारी पर कैसे काबू पाया जा सकता है, किस तरह उसको सही ढंग से किया जा सकता है। तो ऑप्शन अलिफ में बुलंद आवाज़ में पढ़ कर ताकि इमला और तलफ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके। उसके बाद है लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और दुरुस्त लफ्ज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए। और जिम में उस्ताद की तलफ़ुज़ की नकल करके। और दाल में है मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़ कर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बा हो जाएगा, इसलिए कि लफ्ज़ को बुलंद आवाज़ से क्या है, पढ़ते हुए और फिर दुरुस्त तलफ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा, उस दुश्वारी से निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चले अब देखें, आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजिशी तरीक़े की एक मिसाल है। ठीक है, क्या मतलब यह है कि जो आमोजिशी तरीक़े हैं उस तरीक़े से आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल जो हैं उसको हल करने में मदद मिलती है। और आमोजिशी तरीक़े की जो हल करने से मदद मिलती है वह एक तरीक़ा ये है, बताने का मकसद ये है। तो ऑप्शन देखते हैं, यानी आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुताल्लिक़ सीखने से मुताल्लिक़ जो भी मसाइल है उस मसाइल को हल करने में मदद मिलती है, वो आमोजिशी तरीक़े की एक मिसाल ये है। अब देखें, ऑप्शन अलिफ में है तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। और बा में है बुलंद आवाज़ में आमोजिश। और जिम में है खामोशी के साथ आमोजिश। और दाल में है छपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, इसलिए कि तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। जब तवज्जो मरकूज़ रहेंगे, जब तवज्जो एक जगह रहेंगे तो इससे सुनने का अमल भी बेहतर हो सकता है और बोलने का अमल भी बेहतर हो सकता है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ऑप्शन अलिफ। बुलंद आवाज़ में आमोजिश ये भी नहीं होगा, और खामोश के साथ आमोजिश तो ये हो ही नहीं सकता, और छपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार ये भी नहीं होगा। इसका ऑफिशियल आंसर की यही है, ऑप्शन अलिफ, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। ठीक है, अब देखें, सुनने और बोलने के अमल का अहम हिस्सा कौन सा है। क्या सवाल है, सुनने और बोलने के अमल का अहम हिस्सा कौन है। अब देखें, ऑप्शन अलिफ में है सुनना, और ऑप्शन बा में है बोलना, और ऑप्शन जीम में है समझना, और दाल में है मालूमात हासिल करना। तो आप बिल्कुल आसान है, आप समझ सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, ज़रा बताएं आप लोग।
ऑप्शन जीम होगा समझना, इसलिए कि सुनना तो हो ही नहीं सकता, इस यहाँ पे सुनना पाया जा रहा, बोलना तो हो नहीं सकता इसलिए कि बोलना पाया जा रहा। क्या होगा, सुनने और बोलने का अमल हिस्सा कौन है? जब हम बोलेंगे या सुनेंगे तो पहले क्या, हम सुनने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले जो चीज़ सुन रहे हैं तो उसको समझना ज़रूरी है, तब तो उसको सुनकर समझकर बोलेंगे। तो राइट आंसर समझना हो जाएगा जीम। ठीक है, अब देखें क्या है भाई ऑप्शन, सवाल देखें, उर्दू में जुमले की तरकीब किस तरह होती है? उर्दू में जुमले की तरकीब किस तरह होती है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है इस्म फेल मफ़ऊल, ऑप्शन बा में है इस्म मफ़ऊल फेल, और जीम में है इस्म फेल मफ़ऊल इस्म, और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, तो अब देखें पहले कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। हम क्या है भाई, हम क्या है, हम इस्म है। किताब क्या है, किताब मफ़ऊल है, और फेल क्या है, पढ़ना। समझ में आई? हम किताब पढ़ते हैं, तो किताब क्या है, मफ़ऊल है, यानी जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़े हो वो क्या हो जाएगा, मफ़ऊल है। तो इस्म क्या हो गया, हम हो गए खुद, नाउन हो गए, ठीक है, और मफ़ऊल क्या हो गई, किताब हो गई, और उसके बाद पढ़ना क्या है, फेल है। तो समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो गया। क्या होगा, राइट आंसर। चले अब देखिए, सुनी हुई बात के माना को हम कितनी तरह से समझते हैं? सुनी हुई बात के माना को हम कितनी तरह से समझते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है एक, और ऑप्शन बा में है दो, और ऑप्शन जीम में है तीन, और ऑप्शन दाल में है चार। ठीक है, सुनी हुई बात के माना को हम कितनी तरह से समझते हैं? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन दो। ये मैंने पिछले सबक में पढ़ाया भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सुनी हुई बात के माना को हम कितनी तरह से समझते हैं। तो वो दो है, और वो दो कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है सुनी हुई बात के माना को हम कितनी तरह से समझते हैं। तो वो दो है, और दो कौन कौन से, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले उसके बाद देखिए, बातचीत के दौरान कौन कौन से दो अमल साथ साथ चलते हैं? यानी जो बातचीत होती है उसके दौरान कौन कौन से जो अमल है, दो अमल है जो साथ साथ चलते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है सुनना और देखना, ऑप्शन बा में है पढ़ना और सुनना, ऑप्शन जी में है सुनना और बोलना, और दाल में है सुनना और हंसना। तो भाई सुनना और देखना भी नहीं होगा, पढ़ना और सुनना भी नहीं होगा, सुनना और हंसना, बल्कि क्या होगा, सुनना और बोलना। बातचीत के दौरान क्या होता है, किसी की बात को सुनी जाती है और अपनी बात किसी को बोली जाती है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बच्चों को गुफ्तगू के मौका फराहम करने से क्या फ़ायदा होता है? यानी बच्चों को गुफ्तगू का मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए कहा जाए, इस बोलने से बच्चों में क्या फ़वायद हासिल होते हैं, बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, इसी के बारे में सवाल है। तो ऑप्शन अलिफ में है वह अपने तजर्बात और ख़यालात के इजहार के काबिल हो जाएंगे, बा में है अल्फाज सीखेंगे, जीम में है तुकबंदी करेंगे, और दाल में है पढ़ना सीखेंगे। तो भाई अल्फाज भी नहीं सीखेंगे, तुकबंदी कैसे करेंगे, पढ़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, बच्चे वो अपने तजर्बात और ख़यालात के इजहार के काबिल हो जाएंगे। यानी जब बच्चों को हम आज़ादी देंगे कि बोलने के लिए, तो अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को क्या है, दूसरों तक पहुँचाएँगे, और इस तरह अपने तजर्बात और ख़यालात के इजहार के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, और इस तरह के उनके अंदर जो झिझक है, जो शर्मिंदगी है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बा में है तख्लीकी महारतें हैं,
मतलब तख्लीकी महारतें कौन कौन से हैं, ये भी आप सबको पढ़ा दिया हूँ। चलें, ऑप्शन अलिफ में है बोलना और लिखना। तख्लीकी महारतें कौन कौन सी है? ऑप्शन अलिफ में है बोलना और लिखना, और बा में है सुनना और पढ़ना, जीम में है पढ़ना और लिखना, और दाल में है सुनना और बोलना। बताइए बताइए। हाँ, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। तख्लीकी महारत यानी खुद से करने की महारत है। बोलने में भी क्या होता है, खुद से हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। लिखने में क्या होता है, हम अपने फ़िक्र को, अपनी सोच को लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों तख्लीकी महारतें हैं जो बोलकर और लिखकर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई दुश्वारी होती हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, उस दुश्वारी को दूर किया जा सकता है, दूर किया जाएगा। ठीक है, चलें अब देखें, किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब है, यानी किसी लफ्ज़ को जानने का क्या मतलब है। तो ऑप्शन अलिफ में है उसके माखज़ को जानना, ऑप्शन बा में है उसके हैयत को जानना, जिम में है उसके माना को जानना, और दाल में है उसके हिज्जा को जानना। तो भाई उसके माखज़ माहसल को जानना नहीं होता, उसी तरह उसकी शक्ल उसकी बनावट को जानना नहीं होता, बल्कि उसके माना को जानना होता है। क्या भाई? उसके माना को जानना होता है। किसी लफ्ज़ के जानने का मतलब उसके माना को जानना होता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्या कहा जा रहा है, कवायद पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है भाई? कवायद पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन अलिफ में अलग थलग, बा में है उसूल रटा कर, रटाना तो होगा ही नहीं, जिम में अमली मशकों के ज़रिए, ये भी नहीं होगा, बल्कि दाल हो जाएगा। ठीक है, अलग थलग भी नहीं पढ़ाया जाएगा। रूल क्या है कि बच्चे को कहानी या नज़्म में ही बच्चे को ग्रामर पढ़ा दिया जाए उसी के अंदर। ठीक है, तो सियाक में यानी संदर्भ में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या सवाल है भाई, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है, मतलब कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये हैं जो नीचे दिया हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ में है आमूज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। क्या सवाल है भाई? आमूज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। ऑप्शन बा में आमूज़गारों के इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, और ऑप्शन जी में आमूज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना, और ऑप्शन दाल में है तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। तो भाई देखें यहाँ पे है ऑप्शन दाल में है तलफ़ुज़, और क्या है तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, आमूज़गारों की तफ़हीम यानी समझ की सलाहियत का अंदाज़ा करना, भाई यही सही नहीं सही है। ये भी सही नहीं होगा कि आमूज़गारों के इल्म को महफूज करने की सलाहियत, बल्कि क्या होगा, आमूज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, उनके संप्रेषण में। ठीक है, कम्युनिकेशन में। क्या भाई सवाल, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? आमूज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, उस्ताद देखता है कि सुरैया अपने जवाबात में ज़माने माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती, लेकिन उस्ताद की मौजूदगी में हमजोलियों की रहनुमाई में वह ज़माना माजी का इस्तेमाल कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस रहनुमाई को क्या कहा, यानी उस्ताद देखता है कि एक बच्ची जो है, वो बच्ची है, उससे जब जवाबात पूछे जाते हैं तो ज़माने माजी का उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाती है, लेकिन उस्ताद की मदद से क्या करती है, या उस्ताद की मौजूदगी में अपने साथियों की रहनुमाई में या अपने साथियों की मदद से क्या करती है, वो ज़माने माजी का यानी पास्ट का इस्तेमाल कर लेती है। तो इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है? अब देखो ऑप्शन अलिफ में है मचान बंदी, जिसे स्कॉफ होल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्कॉफ होल्डिंग भी कहते हैं। अब ऑप्शन बा में है फीडबैक, और जी में है हल्ले मसाइल, और दाल में है काउंसलिंग। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मचान बंदी,
स्काफ होल्डिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्काफ होल्डिंग कहा जाएगा। और स्काफ होल्डिंग का नज़रिया किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। मचान बंदी का नज़रिया, स्काफ होल्डिंग का नज़रिया किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। अब देखें, कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब, यानी कवायद की जब तदरीस होती है, जब कवायद पढ़ा जाता है तो सबसे फितरी तौर पर कब अच्छा होती है वो तदरीस, जब, मतलब जब ये काम किया जाता है। तो वो काम क्या है उसी को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है, उस्ताद वक्फे वक्फे से यानी थोड़ी थोड़ी देर से मुख्तलिफ मुद्दती कवायद की क्लास लेता है। बा में है, तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। जीम में है, उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है। दाल में मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। तो भाई उस्ताद क्या करता है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मुद्दती कवायद की क्लास लेता है, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है, ये भी नहीं हो सकता। मश्क के लिए ये भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों के क्या करते हैं, खुद ठीक करते हैं। तो ठीक है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है और फितरी तौर पर यह कारगर भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, मुझे कार चाहिए, इस जुमला में चाहिए क्या है, इस जुमला में चाहिए क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है, मुझे कार चाहिए, इस जुमले में जो चाहिए है वो चाहिए क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है मुआविन फ़ेल, बा में है सिफत, और जीम में है असल फ़ेल, और दाल में है इस्म। तो भाई बिल्कुल आसान सवाल है और इसका जवाब भी आसान है। बताएं ज़रा क्या होगा, बताइए आप लोग, आप ही से पूछ रहा हूँ, चले बताइए। हाँ चलिए, सही तो बता रहे हैं। क्या है, असल फ़ेल है, मुआविन फ़ेल भी नहीं है, सिफत भी नहीं है, और इस्म भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें क्या कहा जा रहा है, कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है, मतलब कवायद सिखाने से ज़बान में किस तरह की मदद मिलती है। तो ऑप्शन अलिफ में है ख़वानदगी, बा में है इस्लाह, जीम में है रवानी, और दाल में है तादाद। तो भाई कवायद सिखाने से ज़बान में किस तरह की मदद मिलती है, तो ख़वानदगी यानी पढ़ने की सलाहियत, पढ़ने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, इसके बाद है तलबा में लफ्ज़ियात फ़रहंग को फ़रोग़ देने की सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली हो सकती है। यानी तलबा में लफ्ज़ियात यानी अल्फाज़ माना याद कराने, जैसे डिक्शनरी लुग़त वगैरह है, क्या है, उसको फ़रोग़ देने की सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो ऑप्शन अलिफ में है, क्या है भाई, ऑप्शन अलिफ में है मखसूस सियाक़ो सबाक में नए लफ्ज़ों के माना क़ियास करना। ऑप्शन बा में हर नए लफ्ज़ के लिए लुग़त देखना, नए लफ्ज़ों की मदद से जुमला बनाना, मुतज़ादात और मुतरादिफ़ात को ज़बानी याद करना, ये तो होगा ही नहीं। हर नए लफ्ज़ के, अब हर बच्चे जब हर नए लफ्ज़ की लुग़त देखने लगें तो फिर फ़ायदा क्या रह जाएगा, नए लफ्ज़ की मदद से जुमला बनाना, ये भी नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, मखसूस सियाक़ो सबाक में नए लफ्ज़ों के माना को क़ियास करना है, ठीक है, अनुमान लगाना है, और किस में, संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रवानी का मतलब होता है, यानी रवानी का मतलब होता है, क्या होता है, जो नीचे दिया हुआ है। अब देखें, ऑप्शन अलिफ में है अपने लफ्ज़ों में कहानी का खुलासा बयान करना, जीम में है, बा में है कवायद को उसूल की वजाहत करना, जीम में है रवानी के साथ बोलना, पढ़ना और लिखना, और दाल में दुरुस्त इमला लिखना। तो भाई रवानी का मतलब ही होता है कि मतलब सहल अंदाज में सही से क्या करना है, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ऑप्शन जीम ही राइट आंसर हो जाएगा कि रवानी के साथ बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे देखें,
आगे अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है ज़ोया को ज़बान की साख्त और क़वाइद की मालूमात है, इसमें किस तरह की महारत उसमें किस तरह की महारत फ़रोग़ पा चुकी है। यानी ज़ोया एक लड़की है, तो ज़ोया को ज़बान की साख्त मतलब ज़बान की जो बनावट होती है, शक्ल होती है, जो हैयत होती है, और क़वाइद की जो मालूमात है उसमें किस तरह की महारत फ़रोग़ पा चुकी है। इसको ज़ोया को ज़बान की भी साख्त और क़वाइद की भी मालूमात है। अब उसमें ये दोनों मालूमात तो हैं, इसमें किस तरह की महारत फ़रोग़ पा चुकी है, किस तरह की महारत डेवलप कर ली है, किस तरह की स्किल्स को अपने में फ़रोग़ कर ली है और डेवलप कर ली है। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़ू लिसानी महारत, और बा में है तरसीली महारत, और जीम में है लिसानी महारत, और दाल में है कसीर लिसानी महारत। तो ज़ू लिसानी भी नहीं होगा, तरसीली भी नहीं होगा, कसीर लिसानी, बल्कि क्या हो जाएगा लिसानी महारत, यानी ज़बान की जो महारत है वो अपने ज़बान की महारत को डेवलप कर ली, अपने आप में फ़रोग़ पा ली है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ोया को ज़बान की साख्त और क़वाइद की मालूमात है, इसमें वो लिसानी महारत में फ़रोग़ पा चुकी है। ठीक है, इसमें किस तरह की लिसानी महारत की फ़रोग़ पा चुकी है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।